پاکستان میں صرف اور صرف فوجیوں کو جو ہے گریجویٹی ملتی تھی. شہید بھٹو نے اس جدوجہد کو کرتے ہوئے تمام مزدوروں کو گریجویٹی کارڈ اور پنشنر کارڈ بھی دلایا. یہ صرف شہید بھٹو کی محنت نہیں ہے. آج دیکھیں کہ مزدوروں کے ساتھ جس طرح کا ناروا سلوک کیا جا رہا ہے. آج مزدوروں کے گھرانوں کے اندر جو ہے مزدوروں کے گھرانوں کے چولہے بن چکے ہیں. ہمارے مزدوروں کے وہ اداروں کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، سول اسپتال کے اندر، مارٹوپولیٹن کے اندر 5-5 6-6 مہینے سے جو ہے تنخواہیں نہیں دی جا رہی. اسی طرح کیونکہ میرا تعلق ریلوے سے ہے، ریلوے لیبر یونین کا میں جنرل سیکرٹری ہوں. میں اپنے محکمے کی ریلوے کی نمائندگی کرتے ہوئے آج بھی پسپیرٹی لیبر بیرو کے اس مجمع میں میں اپنے محترم جناب ہمارے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جو کہ ہمارے مزدوروں کے حقوق کی جو لسٹ بھیجی گئی ہے 8 مہینے ہو گئے ہیں ریلوے کے ان کچے ملازموں کو کنفرم نہیں کیا جا رہا اور ان کو تنخواہیں 8 مہینے سے نہیں دی جا رہی. ریلوے کو اس بلوچستان کے اندر بند کرنے کی سوچی سمجھی اسکیم سے بند کیا گیا. 9 مہینے میں انہوں نے یہ پل بنایا جو کہ 1 مہینے سے بھی پہلے بن جاتا تھا. 95 کروڑ روپے ایک پل پر لگا دیا جبکہ پورے جو ہے بلوچستان کے پل اس سے بن سکتے تھے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی ایسی پالیسی جو ہے وضع کریں اس مزدوروں کے لیے تاکہ مزدوروں کو جائز حقوق مل سکے. آج ہمارے ریلوے کے اندر تقریباً جن کی عمریں بعد ہو چکی ہے 15 سال سے وہ وہاں پر کام کر رہے ہیں لیکن ان کو کنفرم کیا نہیں جا رہا. میں اپنے صوبائی قیادین سے مرکزی قیادین سے مطالبہ کرتا ہوں خدا ان مزدوروں کے لیے کوئی ایسی پالیسی وضع کرے جس سے مزدوروں کے حقوق ان کے گھرانے تک پہنچ سکے. نعرہ بھٹو، مزدور کا بھٹو، بھٹو مزدور کا بھٹو، زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے بی بی، نعرہ بھٹو. شکریہ کرمگیر صاحب. اب میں پیپلز پارٹی بلوچستان کے آفس سیکرٹری اختر بلوچ صاحب سے گزارش کروں گا کہ مختصراً اپنے خیالات کا اظہار کریں. اختر بلوچ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے حوالے سے سب سے پہلے میں شہدائے شکاگو اور شہدائے جمہوریت کو صبح سلام پیش کرتا ہوں. ساتھیوں، قابل احترام اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے مختلف ٹریڈ یونینز کے ساتھیوں، پیپلز پارٹی بلوچستان کے قائدین، خواتین حضرات، جی اے بھٹوازم. آج کا دن پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے. اس دن کو شہید بابا نے پاکستان میں پہلی مرتبہ گزیٹڈ دن کا اس پہ اعلان کیا. مزدوروں کے ساتھ یکجہتی کے لیے، مزدوروں کے حقوق کے لیے، مزدوروں کو زبان دینے کے لیے آج کا دن گنا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے. یہ تحفہ بھی شہید بابا، بی بی صاحبہ اور پیپلز پارٹی کا تحفہ ہے. دوستو، پچھلے 3-4 سال اس ملک میں ایک سیول ڈکٹیٹر آیا جو مزدور کش تھا، جس نے پاکستان کے مختلف اداروں سے لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کیا، ان کو نوکریوں سے جبری نکالا. لیکن جب پی ڈی ایم کا حکومت آیا ہے، جب سے آصف علی زرداری صاحب بلاول بھٹو کی کاوشوں سے قومی اسمبلی میں ایک کمیٹی نیشنل اسمبلی کا بنایا گیا ان لوگوں کے لیے جنہیں وہ جبری عمران خان خوش حکومت نے نکالا تھا. ان کی بحالی کے لیے لاکھوں لوگوں کو دوبارہ روزگار پاکستان اور پیپلز پارٹی نے اپنے توسط سے اس کمیٹی کو توسط سے پار کیا.
ये हकीकत है, आज दो रोटी के लिए मजदूर रो रहा है, परेशान है। इस महंगाई के दौर में पीपल्स पार्टी, शहीद बाबा का तो ये विजन था, बीबी साहबा का तो ये विजन था कि हर मजदूर को उस वक्त के या इस वक्त के उसको एक तोले के सोने के तोले के बराबर उसको तनख्वाह दिया जाए। लेकिन आज सोने का तोला 2.25 लाख रुपया पे पहुंचा है। मजदूर की तनख्वाह 16,000 से ऊपर नहीं जा रहा है, 18,000 से पूरे ऊपर नहीं जा रहा है। इस महंगाई में सब कुछ इमरान खान का किया करा, ये वो पॉलिसी है जो IMF का जो उसने करके गया। IMF ने ये नहीं देखा कि हुकूमत किसकी है, उन्होंने तो एक हुकूमत पाकिस्तान से समझौता किया। आज हम ये देख रहे हैं, ये उसका तरह है जो डॉलर आसमान पे है। चीनी कबाब किधर गया, आटा कहाँ गया, दवाइयाँ 400% महंगा हो गया। इस दौर में आप यकीन करें हर घर से बदवाएं निकलता है, इसलिए कि गुजारा नहीं होता है। आया वो घर को चलाए, इलाज करे या अपने बच्चे को स्कूल भेज दे। ऐसे लोग भी है, ऐसे भी अदारों में ऐसे लोग भी मैंने देखा है कि उन अपने बच्चों को स्कूल से भेजने से भी परेशान है कि उनकी किताबें, उनके फीसें वो कहाँ से लाएगा, उनके बुजुर्गों के दवाई कहाँ से करेगा। आटा का मन 4,000 रुपए पर पहुंच गया है, चीनी 125 रुपए पहुंच गया है। इस महंगाई, इस हालात में एक इसका वाहिद इलाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, आसिफ अली जरदारी साहब के साथ है, बिलावल भुट्टो के साथ है। आयत करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, बिलावल साहब को इख्तियार में लाकर वजीर आजम बनाए और वो आपका इस मुल्क से, इस सूबे से इंशाल्लाह बेरोजगारी खत्म होगा, महंगाई खत्म होगा। जिया भुट्टोइज्म। सोशल मीडिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहचान ईसा खान संगीजी और उनके बच्चों को खुशहाल करते हैं। मोहम्मद नामगांव और दूसरे आने वाले साथियों को खुशहाल करते हैं। अब मैं पीपल्स पार्टी हज़ारा टाउन की आन, हज़ारा टाउन की शान इंजीनियर आदि असगरी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आकर अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई इजाज़त, सदर मजलिस, सदर बलूचिस्तान शाहजहां गुजर साहब, सूबाई सरदार सौनत जो रिजाई साहब और बाकी हमारे मौजूद हैं। मैं आप लोगों के ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि हमने राठौर में तो हमारी मीटिंग की और एक पंजाब में हमें पहुँचना है। सिर्फ 1-2 मिनट आपका वक्त चाहता हूँ। मेरे भाइयों, अर्ज़ ये है कि आज मुझे 5-6 महीने हुए पीपल्स पार्टी में शामिल होते हुए, लेकिन मुझे आज अपने उस फैसले पर फख्र है कि मैं पीपल्स पार्टी के फैमिली का एक हिस्सा बन चुका हूँ। और इस पीपल्स पार्टी का क्योंकि मुझे ये अंदाज़ा है कि हमारे कौम, हमारे शहर और हमारे पासमानदा सूबे बलूचिस्तान को अगर किसी दौर हुकूमत में कोई हकूक़ मिला है, अगर किसी दौर हुकूमत में इनकी जो हक तलफी हुई उससे ज़्यादा हुआ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दौर में हुई। और यही चीज़ जो आज यौम मजदूर मनाया जा रहा है, इस किसान, मजदूर और तलबा के लिए कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो इक़दाम का आगाज़ किया था, उनके पर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके नक्श कदम पर गामजन रहते हुए हर दौर हुकूमत में पीपल्स पार्टी ने
मजदूर, किसान और तलबा को उनके हकूक फराहम किए और जितने भी गैर अदवार ने उनके साथ ज्यादतियां हुए। आज पिछले चंद महीने से जो पाकिस्तान में पीडीएम की हुकूमत है, हमारे नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो वजीर खारजा पाकिस्तान है, उनके हिदायत और शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के हिदायत के मुताबिक जितने मुलाजिमीन को इस चंद महीने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहाल किया और उनके साथ जो ज्यादतियां हुई कि उनका अजाला किया, ये तारीख में कभी नहीं हुआ है। तो मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपके हकूक आपको मिले, अगर मजदूर, किसान और तलबा ये चाहते हैं कि उनको उनके हकूक मिले, और अगर आप इस ममलकत खुदा और पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं, इस मुल्क का कोई बड़ा हो, तो आइए आप सब अपने दोस्त अहबाब को अपने इलाकों में पीपल्स पार्टी का पैगाम पहुंचा दे कि वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। शुक्रिया अली अस्करी साहब। यकीनन पीपल्स पार्टी मरकज़ में हुकूमत में उसका एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने उसमें मजदूरों के लिए अपना हक ज़्यादा अदा किया है। पिछले दिनों जो स्केल रिवाइज हुए थे, वो भी हमारे पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी की कोशिशों की वजह से उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मजबूर किया कि हमारी तनख्वाहों में मजदूरों के जो 6 अबूरी तक होते थे उनको बुनियादी फैसले में जम किया। और हमारे बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको सिंध से कौमी असम्बली का मेंबर पीपल्स पार्टी ने मुंतखब कराया, जनाब कादिर मुदख्खिर साहब, आप उन पर फख्र करते हैं कि वो मजदूर बहाली कमेटी के चेयरमैन कौमी असम्बली में उन्होंने भरपूर नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान टेलीविजन, रेडियो पाकिस्तान और दीगर महकमों में मजदूरों को नौकरियों पे बहाल कराया और कच्चों को उनकी मुलाजमतों पे पक्के कराया। ये आज़ादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाती है। अब मैं मजदूर रहनुमा इंतहाई काबिल एहतराम बलूचिस्तान में मजदूरों के जद्दोजहद में एक नुमाया मुकाम रखने वाले हमारे सीनियर साथी खैर मोहम्मद शाहिद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आकर के अपने ख्यालात का इज़हार करें। खैर मोहम्मद शाहिद साहब। आज से 125 साल पहले शिकागो में जिस कुर्बानी का मुजाहरा किया, अपने खून का नजराना किया, उसके तसल्सल में आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी याद मना रहे हैं और अपनी खैर बुला रहे हैं। थोड़ा 4 महीने के बाद इलेक्शन है, हमने तैयारी करनी है, उनको हमने इस पे राजी करना है कि वो हमें वोट दे, हमारे टीम की निशान को वोट दे, क्योंकि आना ये जो अभी हुकूमत है, ये हमारा हुकूमत नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। इंशाल्लाह आने वाला दौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। आप हमारे साथ देंगे, इंशाल्लाह हम आपके साथ देंगे, आने वाला दौर में हम आपका साथ देंगे। मैं वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को याद रखे, तमाम लेबर तंजीमें हमारा साथ दे। आने वाला दौर में इंशाल्लाह जो भी आप पॉलिसियां देंगे, हम वफाक और सुबह में उसको लागू करेंगे। शुक्रिया और सलाम। शुक्रिया सरदार साहब।
میں پیپلز کانسل کی بلوچستان کے صدر شہزادہ کاکڑ سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائے. شہزادہ کاکڑ صاحب. اب میں مزدور رہنما پاک کی ڈپٹی پریزیڈنٹ کے صدر جناب قاسم کاکڑ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کر کے اپنے خیالات کا اظہار کریں. قاسم کاکڑ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیپلز لیبر بیرو اور پیپلز پارٹی کے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے قائدین اور دیگر ساتھیوں، سب سے پہلے یکم مئی کی مناسبت سے پیپلز لیبر بیرو کی جو آج یہ پروگرام ہے، سب سے پہلے شکاگو کے ان عظیم محنت کشوں کو میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ جنہوں نے 1886 میں مزدوروں کے لیے، ملازمین کے لیے اور اپنے حقوق کی خاطر جو جدوجہد کی اور اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور اپنے سفید پرامن جھنڈے کو اپنے خون سے لال کرتے ہوئے پوری دنیا میں باور کرایا کہ جدوجہد ہی ملازمین، مزدور کے لیے وہ آخری راستہ ہے کہ جس سے آپ اپنے اصول تک پہنچ سکتے ہیں. تو دوستو، ان دوستوں میں تو یہ کارنامہ دکھا دیا جس کی بدولت آج پوری دنیا میں ان کو یاد کیا جاتا ہے اور اس دن کو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. تو مختصر ٹائم ہے، دوست بار بار کہہ رہے ہیں، لیکن کچھ میں ضرور کہوں گا کہ خصوصاً ہمارے ملک میں اس وقت مہنگائی کی آتوں، تاریخ میں یہ پہلی بار یکم مئی بہت ملازم طبقہ، مزدور طبقہ، ان کے لیے یہ بہت سخت سال ہے جو تاریخ میں پہلے بار ہم نے نہیں دیکھا. آج آپ یقین کرتے ہیں کہ جو روزانے والے ہیں ان کو تو اللہ ہی مالک ہے. ملازم طبقہ خدا کی قسم ایک وقت کی روٹی کا بھی محتاج ہوتے ہیں. ان کے بچے اسکولوں سے انہوں نے نکالنے پہ مجبور ہو چکے ہیں. آج ان کی پڑھائی کے لیے ان کے بستے، ان کی کتابیں نہیں خرید سکتے. تو میرے دوستو، اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے ادارے کے لوگ جو ہے اپنے تنخواہوں کی نہ لے کے رونا رو رہے ہیں. مسپلٹی ہو، واسا ہو، ٹیچرز ہو، یونیورسٹی کے لوگ، ہمارے دوست سارے، ان کے 7 مہینے ہمیں تنخواہیں بھی یہاں پہ میسر نہیں ہیں. تو پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے. ایک چیز تو میں کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں کم از کم ملازم طبقہ جو ہمارے لوگ ہیں ان کو ایک سکون ہوتا ہے کہ ہمارے ملازمت کا تحفظ ہوگا. جس طرح پچھلے دور میں بڑے بڑے ہمارے اداروں کو ٹھیکیداری نظام پہ دیا گیا، دیگر جو ہے ایسے اقدامات اٹھائے گئے جو مزدور کش پالیسیاں، تو کم از کم ہم یہی پیپلز پارٹی سے امید رکھتے ہیں کہ اس وقت ملازمین پر جو یہ مہنگائی کا بوجھ ڈالا گیا ہے، اس کے لیے ان کے قائدین ہمارے محنت کشوں کی آواز بن کر اس بات کو اسمبلیوں تک پہنچا کر، تاکہ یہ ملازمین جو ہے سکھ کا سانس لے سکے اور جو ہے 95% جو اس ملک کی معیشت میں یا اس ملک کا جو طبقہ ہے وہ مزدور کا طبقہ ہے، اس کو ایک 2 وقت کی روٹی تو میسر آ سکے. بہت بہت شکریہ مہربانی. شکریہ قاسم کاکڑ صاحب. اب میں
ارباب اسد سے گزارش کروں گا تو اسٹیج پہ تشریف رکھیں. ارباب اسد صاحب صوبیدار جتک صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. صوبیدار جتک صاحب. اور میں دعوت خطاب ہوگا پیپلز کلچر ونگ کے صدر شہزادہ کاکڑ صاحب کو کہ وہ مختصر اپنے خیالات کا اظہار کریں. شہزادہ کاکڑ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس خوبصورت پروگرام کے سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہمارے قائدین، پنڈال میں بیٹھے ہوئے میر منور لاگو صاحب، سید داؤد آغا، ارباب اسد صاحب، الطاف گجر صاحب، ہمارے خواتین بہنیں ماجبین جبائلی صاحبہ، فائزہ درانی، سکینہ عبداللہ صاحبہ اور ثنا درانی صاحبہ، کیونکہ آج میں کچھ محسوس کر رہا ہوں. ویری فرینڈ، لیبر والوں نے اپنا ہمت کیا، پارٹی والے بھی تھوڑا دل بڑا کر دے. اگر کوئی ایک بیچ میں پروگرام آ گیا ہمارے وہ بھی ضروری تھا، جس میں سے ہمارے صوبائی جنرل سیکرٹری صاحب اور دیگر صاحبان، اس میں بھی ان کی حاضری ضروری تھی. بدقسمتی سے پروگرام کا ٹائمنگ تھوڑا ڈسپلن رابطہ سیکرٹری صوبائی کا ہے کہ وہ یہ بتایا کریں کہ زوم کا پروگرام اس ٹائم ہے اور لیبر کا پروگرام اس ٹائم ہے، تو ہمارے لیبر کے دوستوں کا یہ پروگرام کچھ اور بھی خوبصورت ہو سکتا تھا. اور سٹیج پہ ہمارے ساتھ بیٹھے ایوب آغا اور اختر شاہ مندوخیل صاحب، بقایا کا نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ اس کا نام سب نے لیا. یہ جو کچھ ایسے بھی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ہزارہ برادری کے، کچھ ایک دو دوست مجھے نظر آئے، ہمارے غلام حسین صاحب اور تمام ساتھیوں کو میرا سلام. باتیں تو سب دوستوں نے کی، میں ایک چیز کا نشاندہی کروں گا، وہ پیپلز پارٹی اور خاص کر لیبر، اور میں بھی خود ایک ٹریڈ یونین کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات و گورنمنٹ ٹیچر ایسوسیشن کے، مجھے کچھ معلومات ہے، میں وہ آپ سے شیئر کر لوں گا کہ کیا پوزیشن ہے ملازم کی. ملازمین کی تنخواہیں جو ہے وہ اگر آپ ایک پے سلپ کی پرنٹ آؤٹ کر لیں یا میں اپنا پے سلپ دکھا دوں تو مجھے 5,000 ہاؤس رینٹ مل رہا ہے. اس طرح یعنی میں تمام ملازمین کی اگر بات کروں 10,000 5,000 میں آپ کو ایک ٹینٹ کرائے پہ پورا مہینے کے لیے نہیں مل سکتا ہے. تو میرے حکومت وقت اور آنے والے دور کے حکومت یعنی پیپلز پارٹی کی حکومت سے یہی گزارش ہوگی کہ جو آج کل ایک چھوٹے سے چھوٹے خستہ حال کچا مکان کا کرایہ ہے وہ کم از کم 30,000 ہے آج کی مہنگائی کے دور میں. دوسری بات، میڈیکل کے مد میں ملازمین کو کم از کم جو ایک ملازم کے لیے اب 1,000 روپے میڈیکل مل رہا ہے. کیا 1,000 میں آپ کا پرائیویٹ ڈاکٹر اس کا فیس ہی صرف ہو سکتا ہے، بقایا علاج نہیں ہو سکتا ہے. ان کے علاوہ آپ کا ٹوٹل جو پینشن ہے، اگر اس پینشن کو ایک ملازم اگر ریٹائر ہو رہا ہے تو اس کا پینشن 30 لاکھ میں وہ گھر بنائے، 30 لاکھ میں وہ اپنے بیٹی یا بیٹے کی جہیز یا شادی کا بندوبست کریں، یہ بالکل ناممکن ہے. ہمارے شکاگو کے جو جیالوں نے، جو مضبوط طبقے نے جو ہمت کیا کہ 24 گھنٹے سے 12 گھنٹے، 12 سے 8 گھنٹے پہ ایک ملازم کی ڈیوٹی کر دی، لیکن اب وہ 8 گھنٹے کا جو معاوضہ مل رہا ہے، آپ انٹرنیشنل یا یورپین کنٹریز جائیں،
वहाँ पे 8 घंटे के बाद आप काम करोगे तो आपको एक्स्ट्रा उनकी अलाउंस मिलता है, उसका पर और आपको पैसे मिलते हैं, जबकि यहाँ पे ये भी नहीं है। यहाँ पे हमारे बहुत ऐसे डिपार्टमेंट है जिसके मुलाजमीन अब भी 12 से 14 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि यहाँ पे महंगाई इतना ज्यादा है कि बिल्कुल उनको कुछ नहीं मिल रहा है। मैं स्पेशली तौर पर पीपल्स पार्टी की क़यादत से ये गुजारिश करता हूँ कि 3 महीने से बलूचिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी उसकी मुलाजमीन की क्लास 4 से लेकर 20 ग्रेड के प्रोफेसर तक उसकी तनख्वाहें नहीं मिल रही है। ये एक अलमिया है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है, मैं पार्टी से गुजारिश करता हूँ कि इस बेस पे उनके साथ एक जेती करें और आला हुकाम तक, चूंकि इस गवर्नमेंट में भी हम लोग शराकत तो है, हमारे गवर्नमेंट से ये कहें कि एक उस्ताद या एक वहाँ पे क्लास 4 या वहाँ पे जितने भी मुलाजमीन हैं यूनिवर्सिटी के, उनके तनख्वाहें फौरी तौर पर हल किया जाए। जी भुट्टो, जी आवाम, जी पाकिस्तान। शुक्रिया शाहजादा साहब। अब मैं पीपल्स फेडरेशन बलूचिस्तान के सूबाई सदर जरबुल बलोच से गुजारिश करूंगा कि मुख्तसर अपने ख्याल करके गुजारिश करें जल्दी करें। मुजा खान उमरानी से गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ लें। मुजा खान उमरानी। बात मिनटवार साहिब सदारत और उसके बाद स्टेज पे बैठे अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन को मैं शुरू सलाम पेश करता हूं कि जो आज तक मजदूर, तालिब इल्म और किसान के हुकूक की जद्दोजहद में पेश है। उसके बाद मैं शुरू सलाम पेश करता हूं शिकागो के उन शहीदों को, फ्रांस के उन शहीदों को, रूस के उन शहीदों को और 68 और 69 में पाकिस्तान में आने वाले इंकलाब के दौरान उन शहीदों को कि जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी जानों का नजराना देकर यहाँ के जालिम हुक्मरानों को ललकारा। और उसके बाद सलाम उन गाजियों को कि जो आज तक जमहूरी रवायात को बरकरार रखते हुए साम्राज्य के खिलाफ नाराए बगावत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक तारीख रही है। पाकिस्तान में जितने भी इनकलाबी इस्लाहात आई हैं सिर्फ और सिर्फ इस पार्टी की वजह से आई हैं, लेकिन इस पार्टी को चलने नहीं दिया गया। आज तक इस मुल्क में एक भी सियासी पार्टी को 5 साल तक चलने नहीं दिया गया। आज का ये दिन 1 मई शिकागो के उन शहीदों के नाम है कि जिन्होंने पूरी दुनिया में अपने इस जद्दोजहद से बावर कराया कि मजदूर का हथियार, तालिब इल्म का हथियार और किसान का हथियार बंदूक से ज्यादा ताकतवर है। मिन्नतवार। अब मैं पीपल्स पार्टी के सूबाई एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर सीनियर साथी मुनव्वर नागो से गुजारिश करूंगा कि मुख्तसर अपने ख्यालात का इज़हार करें। मुनव्वर नागो। स्टेज पर बैठे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर कायदीन, अगर मैं फर्दन सबका नाम लूँ तो टाइम भी चला जाएगा और मकसद से भी हट जाएगा इसका। और पिंडाल में बैठे तमाम दोस्तों, आप सबको मेरा सलाम। शोधा शिकागो को सलाम, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और उनके मिशन को सलाम, जिन्होंने मजदूर के लिए, लेबर के लिए, किसान के लिए, तलबा के लिए आवाज़ उठाई। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को सलाम,
वो एक खुदाई सलाहियत के मालिक थे। उनके अंदर जो मजदूर के लिए जज्बा था, जो हिम्मत थी, जो मेहनत थी, जो लगाव था, वो किसी के अंदर नहीं था। शहीद जुल्फ़िकार ने 10 फरवरी 1972 में ट्रेड यूनियन का बुनियाद रखा। उसके बाद मजदूर को उसके हकूक़ दिए जो आज हम यहाँ खड़े। अगर हम देखें, हम महसूस करें, हम जो खाना खाते हैं वो भी किसान हैं, खेतों से आता है। हम जो कपड़े पहनते हैं वो भी मजदूर है, वो हमें हमारे कपड़े सीता है। हम जो ड्राइवर रखते हैं वो भी मजदूर है जो हमें मंजिल तक पहुंचाता है। यानी हम उनके मोहताज हैं। देखना चाहिए, सोचना चाहिए, मजदूर को इज्जत देना, खुद को इज्जत देना, क्योंकि वो उसकी रोज़ी हलाल है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं कि वो हाथ की कमाई का खाता है। बहुत से लोग अपने ज़ुबान की कमाई के खाते हैं। बहुत से लोग अपने जो है मेहनत मुशक्क़त करते हैं। मजदूर वो तबका है जो दिहाड़ी लगाता है, जो 9 बजे जाके शाम 5-6 बजे वापस आता है, तो अपने बच्चों के लिए रोज़ी पैदा करता है। मैं लेबर बैरो बलूचिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मौका दिया कि आप लोगों से अपने ख्याल शुक्रिया मनोहर नागर साहब। अब मैं पीपल्स पार्टी वुमेन विंग के सूबाई ड्यूटी जनरल सेक्रेटरी सकीना अब्दुल्ला साहबा से गुजारिश करूँगा कि मुख्तसर अपने ख्यालात का इज़हार करें। सकीना अब्दुल्ला साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जिस तरह से मेरे सारे तमाम भाइयों ने कहा, मेरा भी वही चांस है, वही आप सबके लिए है कि आज जो शिकागो के 1886 के जितने भी मजदूर थे जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया, और आज के मजदूर को जो लिबर्टी हासिल है या आज के मजदूर को जो हक हासिल है, उसके पीछे उन तमाम शुहदा को हम सब की तरफ से सलाम। दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ जो लेबर विंग है, बहुत ही बेहतरीन उन्होंने ये प्रोग्राम सेलिब्रेट किया है और हर साल माशाल्लाह करते हैं। हम देखते हैं कुछ दरख्वास्त है मेरी जो स्टेज पर बैठे हैं, मैं सिर्फ 5 मिनट दूँगी, प्लीज़ आप मेरी बात सुनें कि यहाँ पर आने वाला बहुत कुछ सोच कर आता है कि यहाँ कर बोले, और उसकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि जो सामने बैठे हुए हैं, स्पेशली जो स्टेज पर मेरे कायदीन बैठे हुए हैं, वो बात सुने। तो मेरा सिर्फ कहने का यहाँ पर थोड़ा सा वो है कि जो मिस मैनेजमेंट है वो शायद हम लोगों की वजह से, मैं यहाँ टिपिकल बात नहीं करूँगी, बट मेरी रिक्वेस्ट है कि लास्ट ईयर हमारा फर्स्ट वीक मई का जो प्रोग्राम था, मुझे साहब को अच्छी तरीके से याद है, वो बहुत बेहतरीन हुआ था। और इस प्रोग्राम में मिस मैनेजमेंट देखकर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। जिस तरह से हम अगर वुमेन विंग के प्रोग्राम को, मदर पार्टी के प्रोग्राम को, जो हमारे BSF है उसके प्रोग्राम को या यूथ विंग के प्रोग्राम को कामयाब बनाते हैं, आइंदा हम कोशिश करेंगे। बल्कि मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि लेबर विंग के प्रोग्राम को भी उतना ही भरपूर बनाएं, क्योंकि जिस तरह से मुनव्वर भाई ने कहा कि वो ऐसे लोग हैं, लेबर ऐसा है कि जिसके ऊपर पूरा आपका ये पूरा माशरा मुनस्सिर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जितनी आप उनको इज्जत देंगे, मीन्स आप अपने आप को इज्जत दे रहे हैं। इसके साथ साथ मैं सिर्फ यहाँ पर अपने डिपार्टमेंट के एतबार से बात करूँगी, चूँकि मेरा माजिबीन जमाली साहिबा का एक ही डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है। आपको अच्छी तरीके से पता है, यहाँ पर मौजूद हम फोकल पर्सनस हैं जो वेलफेयर डिपार्टमेंट और HRD के। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी कि हमारे एक और चीज़ जो लेबर के लिए बहुत बेहतरीन की है, वो हमारी ही फेडरल मिनिस्ट्री ने की है। पहले कोटा था 5%, अब कोटा है 10%। तो मेरी दरख्वास्त है लेबर विंग से कि वो इस कोटे पर ज़रूर काम करें, और यहाँ पर जैसे जिन बच्चियों की शादियाँ होती हैं उनके लिए एक ख़ास कोटा मुख्तस है, जो पीपल्स पार्टी के लोग तो शायद नहीं अवेल कर रहे, लेकिन बाकी बहुत सारे लोग अवेल कर रहे हैं। तो काइंडली आप लोग ऐसा करें कि OLE मैं शेयर कर दूँगी आपकी पूरी से, और मैडम जवानी साहिबा भी इंशाल्लाह शेयर करेंगी। हम दोनों इसको आपके साथ शेयर करेंगे। कोशिश करें कि मैक्सिमम हमारा जो मजदूर तबका है या डिफरेंट यूनियंस में जो लोग हैं वो इससे इस्तेफादा हासिल करें, वो इसकी रजिस्ट्रेशन करें चाहे, लेकिन उसका यूनियन से उसका ताल्लुक होना ज़रूरी है, और
जब भी हुकूमत आती है, हुकूमत का माहौल बनता है, ये लोग आकर पाकिस्तान पीपल पार्टी में शामिल हो जाते हैं, लूट खसूट करके। 10 साल 2 इलेक्शन में हमने कोई सीट नहीं जीती है। क्यों नहीं जीती है? वो जो पहले डाकू थे, जो पीपल पार्टी को लूट कर गए थे, उन्होंने पीपल पार्टी का बट्ठा डून किया और बैठाया। आज दोबारा फिर वही लोग आ रहे हैं। मैं बिल्कुल खत्म करूंगा थोड़ी देर से भाई। मेरा पाकिस्तान पीपल पार्टी के लिए मेरा जीना मरना मेरे लिए इंशाल्लाह ये एजाज़ है। मेरे सदर बैठे हुए सबसे सीनियर कि मेरे बाप पीपल पार्टी में था, मैं पीपल पार्टी में हूँ, मेरा बेटा पीपल पार्टी में है। और इंशाल्लाह आने वाली मेरी नस्लें मुझे पीपल पार्टी से कोई नहीं निकाल सकता है। रास्ता हमारा रोक सकते हैं लेकिन मुझे निकाल नहीं सकते हैं। लुच्चों, लफंगों और बदमाशों से नहीं डरता हूँ। मैं भुट्टो का सिपाही हूँ, भुट्टो का नारा मारता हूँ। अभी भी इससे कम और ये है नजरियात है। दो जो काम करते उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। जैसे आज मेरे दोस्त आए, मेरे पार्टी के दोस्त आए, मेरे बेटों के दोस्त आए, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो लोग नहीं आए वो पीपल पार्टी में रहकर पीपल पार्टी को नुकसान ना दे। मेरी बात से किसी भाई को चाहता हूँ। तमाम दोस्तों का शुक्रिया लेबर पैरों की तरफ से, मेरी तरफ से, अजीज लांगो साहब की तरफ से बहुत शुक्रिया। सदर साहब के जज्बात का हम कदर करते हैं, लेकिन वो साथी जो यहाँ से उठ के गए बदकिस्मती से जो है, जैसे कि सकीना साहबा ने कहा कि मिसमैनेजमेंट की वजह से, रास्ते की कमी की वजह से बैक वक्त हमारे 2 प्रोग्राम हो गए। हमारे मेहमान खास सरवरुख जोगी जी साहब और हमारे दूसरे साथी वहाँ पे पीपल्स पार्टी 4 तारीख को, जिसमें हमारे 4 वफाकी वजीर आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने डिजिटल मीडिया के ज़रिए अपने प्रोग्रामों को, अपने पार्टी के नज़रिए को, कारनामों को उजागर करने के लिए डिजिटल मीडिया का एहतमाम किया है। तो साथी उस मीटिंग में गए, शायद सभी करण साहब को ये मालूम नहीं था। बड़ा ये है कि जिसने भी पीपल्स पार्टी से फ़ायदा उठाया और पीपल्स पार्टी को धोखा दिया, ये शहीदों का पार्टी है, उसका फिर सियासत से नाम निशान मिट जाता है या वो दर दर की ठोकरें खाता है। अब मैं पीपल्स पार्टी वुमेन विंग के नायब सदर माजबीर जमाली साहबा से गुजारिश करूँगा कि मुख्तसर अपने ख्यालात का इज़हार करें। माजबीर साहबा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने स्टेज पर बैठे कायदीन, अपने मोतबरीन जो नीचे मिज़ाज में बैठे हैं, मेरी वुमेन विंग की ख़वातीन को सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ। और लेबर ब्यूरो की तरफ से जो ये बहुत अच्छी एक तकरीब मुनक़िद की गई है, अभी हमारे भाई ने बहुत एक पुरजोश और बहुत अच्छी तकरीर, अच्छी बातें कही, अच्छा लगा सुनकर, क्योंकि सच था वो, सच होता कड़वा है लेकिन बहुत सच होता है। दूसरी बात ये कहूँगी कि मकसद हमारा है मजदूरों को याद रखना, भुट्टो के मजदूरों को याद रखना। मतलब हमारे पार्टी का जो मंशूर, जो विजन है, भुट्टो का जो विजन था वो मजदूरों का विजन है। हमारे मजदूर हमारी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और उनके जो मुतालबात हैं, जो उनकी जो है ना ज़रूरियात हैं, जो मतलब उनकी मुश्किलात हैं, उनको उनका हल करना ये हमारे प्राइज में आता है। और बीइंग अ वोकल पर्सन मैं ये कहूँगी मुझसे जिस हद तक होगा मैं इंशाल्लाह अपने मजदूर भाइयों के साथ खड़ी रहूँगी और विफाक तक उनकी जो मुश्किलात, जो चीज़ें हैं पहुँचाने में उनकी मदद करूँगी इंशाल्लाह। और बाकी यही कहूँगी कि भुट जिंदा है, भुट्टो जिंदा है। एक शेर पर ख़त्म करूँगी, मैं अपने नाम की छुट्टी मना नहीं सकता, मैं अपने नाम की छुट्टी मना नहीं सकता। ये वो सच है, हम बना तो रहे हैं मजदूर डे,
लेकिन मजदूर ही छुट्टी नहीं मना सकता। मजदूर हूँ, खाली हाथ घर जा नहीं सकता। मैं अपने नाम की छुट्टी मना नहीं सकता। मजदूर हूँ, खाली हाथ घर जा नहीं सकता। इसके नाम की छुट्टी होगी, खुद वो काम कर जाएगा। उसके नाम की छुट्टी होगी और वो खुद काम पर जाएगा। मेरे देश में आज यौम मजदूर मनाया जाएगा। शुक्रिया माजूरी साहबा। अब मैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अल्ताफ गुजर साहब से गुजारिश करूँगा कि मुख्तसर अपने ख्यालात का इज़हार करें। स्टेज पे बैठे हुए लेबर के और के कायदीन और सूबाई कायदीन, हॉल में बैठे हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ हमारे साथी ख़वातीन और अस्सलाम वालेकुम। बात तो बहुत सारी है लेबर के हवाले से। लेबर का जो हालत है इस टाइम, लेबर तो दूर की बात है, जो मिडल मैन की हालत है और बुजुर्ग जो अच्छे तबकों की हालत है उसकी बुरी हालत है। अगर इस हालात को देखा जाए तो लेबर डे मनाने की बजाय हमें जो है मेहनत करनी चाहिए, छुट्टी देने की बजाय मेरा ख्याल है कि ऑफिस में सब में ज़्यादा काम करना चाहिए ताकि लेबर जो है उनका घर का चूल्हा जल सके। तो मैं जो है मज़ीद जो है मैं शहीद खरल भाई के साथ जो है मतलब इत्तेफाक करता हूँ। जो उन्होंने कहा अच्छा कहा, जो कहा सच कहा और अच्छा कहा, सच के साथ शुक्रिया गुजर साहब। अब मैं पीपल्स लेबर ब्यूरो डिस्ट्रिक्ट कोयटा के सदर बाबू नशानी से गुजारिश करूँगा कि मुख्तसर ख्यालात को इज़हार करें। बाबू नशानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे स्टेज पे बैठे हुए कायदीन, मेरी बहनें और पिंडाल में बैठे हुए मेरे भाई, अस्सलाम वालेकुम। सच बोलना और सच को समझना ये अलग बातें हैं। जिस तरह मेरे प्यारे भाई शहीद खरल साहब ने कहा, ये मेरे स्टेज पे बैठे हुए भाई ये सोच लगाएं, अगर पार्टी को बलूचिस्तान में हकीकी मायनों से चलाना है, मजदूरों का साथ देना है, मुलाजमीन का साथ देना है, तो ये पार्टी के साथ वफादार होंगे। या फिर एक तरीका और भी है, मिनिस्ट्रियां लो, कमीशने खाओ और अपने लिए बनाओ। या तो अवाम बनाओ, या तो मुलाजमीन अपने पास बनाओ, या तो ये तंजीमें अपने साथ मिलाओ। एक तरीका हो सकता है। मैं अपने साथियों से जो मेरे स्टेज पर बैठे हुए सीनियर हैं, मैं इनसे दरखास्त करूंगा, जब आपको टिकटें मिले और आप मिनिस्टर बने, फिर हम जैसे लोग आपके पास आए, ये वक्त याद रखना, बुलैश को दरवाजे से बाहर निकाल दो, ये नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं आप हमारे भाई हो, हम आपको मजबूत करेंगे। ये प्रोग्राम इसकी कड़ी है। अगर हम ना होते, लेबर ना होता, तो आज आप भी यहाँ पे स्टेज पे ना बैठे होते, या ये पार्टी ना होती। इस पार्टी के असल में तो इस पार्टी के हम सब वर्कर हैं, हम सब लेबर हैं, हम सब इस पार्टी के साथ वफादार हैं। और आखिर में मैं यही कहूंगा, जिए भुट्टो, जिए भुट्टो आजम। और मैं लाला सगीर की बातों से 100 नहीं, एक इंसा लगा के फिर जितने इनसे लगाते हो मैं इत्तेफाक करूंगा। वस्सलाम। शुक्रिया बाबू साहब।
اب میں پیپلز پارٹی وومن ونگ کے ثنا درانی صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ مختصر اپنے خیالات کے بعد ثنا درانی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج کے دن کی مناسبت کے حوالے سے ہماری جو محنت کش طبقہ ہے ان کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی، اور ہمارے جو ہے وہ شاہجہاں گجر صاحب، ان کی پوری ٹیم، ڈویژن اور ضلع کے جو عہدیداران ہیں، ہمارے تمام صوبائی قائدین یہاں پر، اور پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے تمام خواتین کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں کہ آج کے اس دن کے موقع پہ پیپلز پارٹی کے اندر انہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا. جب ہم بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے نظریے کی تو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے یہ نظریہ جب شروع ہوا تھا تو روٹی کپڑے اور مکان کے نعرے سے شروع ہوا تھا، اور میرے خیال سے جس طبقے کی یہ ضرورت ہے وہ یہی مزدور طبقہ تھا، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی نے اس نعرے کو جو ہے وہ اپنا منشور بنایا ہے. اور ہمیں بھٹوازم کو نہیں بھولنا چاہیے تھا، جو ایک عام انسان کی، جو ایک محنت کش کی، جو ایک مزدور کی بات کرتے تھے. اور اس پارٹی کی بنیاد جو ہے ہم نے ان تمام مزدوروں کو اپنے ساتھ لے کر چلنے پر جو ہے اس کی بنیاد رکھی تھی. ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ محنت کش طبقہ ہے تو ہمارا ملک ہے، اور ان کی محنت سے جو ہے وہ ہم اپنے ملک میں مختلف ترقیاتی کام بھی دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی چلتی ہے. ان کے بغیر شاید معاشرہ مکمل نہیں، مگر افسوس ہے پیپلز پارٹی میں ہوتے ہوئے ہمیں اس چیز کا افسوس ہے آج، کیونکہ ہم گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہیں، کیونکہ ہم اس وقت پالیسی کے اس اسٹیج پہ نہیں ہیں کہ ہم اپنے اس پرانے ہمارے قائد کے دیے ہوئے روٹی کپڑا مکان کو اس طریقے سے لے کے چلیں. مگر انشاءاللہ فیوچر پیپلز پارٹی کا ہے، اور ہم اپنے مزدور بھائیوں کا اسی طریقے سے خیال رکھیں گے. یہ ہمارا فرض ہے جس طریقے سے بھٹو صاحب کا نظریہ تھا. اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی ان تمام لوگوں کو جو اپنی محنت سے اس ملک کو چلاتے ہیں. ہم شاید ایک طبقے کو بھولتے ہیں. اگر میں صرف بلوچستان کی بات کروں تو یہاں پہ 68% خواتین بھی ہوم بیسڈ ورکر ہیں جو بیچاری لیبر کی مد میں نہیں آتی. ان کو بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں ان کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے. اور اب کیونکہ ہوم بیسڈ ورکر کے لیے جو ہے وہ قانون سازی ہو چکی ہے تو ہمیں اس کو بھی فوکس کرنا چاہیے، اور ہماری بہنیں جو گھروں میں بیٹھ کے مزدوری کرتی ہیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے. میں ایک دفعہ پھر سے تمام مزدوروں کو آج کے دن کے حوالے سے خراج تحسین پیش کرتی ہوں، اور انشاءاللہ یہ باور کرواتی ہوں کہ پیپلز پارٹی اپنے دور حکومت میں جب دوبارہ سے انشاءاللہ آئے گی تو سب سے پہلے انشاءاللہ اسی طبقے کے لیے جو ہے وہ کام ہوگا. تھینک یو. شکریہ ثنا درانی صاحبہ. یقیناً پارٹیاں جو ہے اپنے مشکل وقت کے ساتھیوں کو اگر ان کے ہاتھ میں کوئی پاور ہو کسی حوالے سے، ملازمت دینے کے حوالے سے، کسی اور حوالے سے، تو اپنے قربانی دینے والے ساتھیوں کو، جدوجہد کرنے والے ساتھیوں کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ مشکل وقت میں یہی جدوجہد والے ساتھی آپ کو کام آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہمارے لیڈر صاحبان اور پنڈال پہ میرے بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم. جیسا کہ آج ہم یہ دن منا رہے ہیں یوم مزدور کے نام سے، میرا اپنا تعلق بھی مزدور طبقے سے ہے، اور سوئی گیس کے پیپل لیبر یونین سے میرا تعلق ہے. بالکل اس ٹائم جو استحصال ہو رہا ہے ہم مزدوروں کا، اس مہنگائی کے دور میں جو آج
ये महंगाई जो पहुंचा हुआ है तकरीबन 500% भी महंगा हुआ है, मगर तनख्वाह हमारे वही 10% के हिसाब से सालाना बजट में पेश होते हैं। जैसा कि पिछला बजट गवर्नमेंट पेश कर रहा था 7% बढ़ा रहा था, लेकिन हमारे कहत मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने मौजूदा वजीर आज़म पे ये जोर डाला कि इस महंगाई के तनासब से 7% कुछ भी नहीं है, मगर कम से कम 15% तो बढ़ा दो। गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया 15% आसिफ अली जरदारी साहब के कहने पे, और जितने भी अलाउंसेस थे वो बेसिक में हम मजदूरों के जम किया, फिर मजदूरों की थोड़ा सा सैलरी बढ़ गई। हम हमारी पार्टी थोड़ा सा हिस्सा इस गवर्नमेंट में है, मगर हमें पूरी बात करेंगे कि नून लीग का ये वतीरा रहा है कि वो मजदूर कुश पार्टी है। जैसा कि इससे पहले कई मजदूरों को बरतरफ किया, जो मोहतरमा ने 1994-95 के अदवार में हमारे सुई गैस के मुलाजमीन को 5000 बंदों को नौकरियां दी थी पूरे पाकिस्तान से। जूही 97 में इनकी गवर्नमेंट आ गई, नून लीग के सबको बरतरफ किया, मगर मोहतरमा मजदूरों के साथ खड़ी थी। शिकारपुर में मुझे याद है कि कहता है मेरा वसीयत है कि जब भी हम पावर में आएंगे आप मजदूरों को हम बहाल करेंगे। इसी तरह आसिफ अली जरदारी साहब 2008 के इलेक्शन में मोहतरमा का वो वसीयत पूरा किया और पाकिस्तान के बरतरफ तमाम मजदूरों को बहाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने तमाम घरों के चूल्हे जो बुझे हुए थे वो दोबारा चल पड़े। यही पीपल्स पार्टी की मालूमी मिन्नत है। वसलाम। और एक डिसिप्लिन के तहत चलाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है जनाब अयूब आगा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। स्टेज पर बैठे आज के इस पुरवकार प्रोग्राम की सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपल्स लेबर ब्यूरो के सूबाई सदर शाहजहान गुजर साहब, स्टेज पर बैठे हुए सूबाई कायदीन, जिलाई कायदीन, विंग्स के कायदीन, हमारे साथ इस पंडाल में बैठे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़वातीन विंग की कायदीन, दीगर दोस्त, आप तमाम दोस्तों की इजाज़त से सिर्फ शुरू में ये बात कहता हुआ चलूं कि आज की इस शानदार प्रोग्राम के मुनक्किद करने पर, मजदूरों के साथ इज़हार यकजहती करने पर पीपल्स लेबर ब्यूरो के सूबाई कायदीन और उनके तमाम काबीना, उनके वर्कर्स को अपनी जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोयटा सिटी के जानिब से खराज तहसीन पेश करता हूँ और आपको दाद देता हूँ। मजदूर के हवाले से, मजदूर वो खुशनसीब तबका है, लेबर वो खुशनसीब तबका है कि योम मई जिसका आज 137वां साल पूरा हुआ है, मजदूर लेबर, तमाम लेबर फेडरेशंस खराज तहसीन के हकदार हैं कि आज 137 साल के बाद कम बेश 1.5 सदी होने वाले को है कि आज में आप उन मजदूर भाइयों को नहीं भूले
जिन्होंने आज से 137 साल पहले 1886 में अपने जानों का नजराना पेश करके अपने आप को शिकागो के शहीदों के नाम से याद करवाया, और आज की ये लेबर्स, ये मजदूर तबका आज भी उनको खराज तहसीन और सुर्ख सलाम पेश करते हैं। मैं अपनी तरफ से, अपनी तंजीम की तरफ से शिकागो के उन शहीदों को जिन्होंने आज से 137 साल पहले अपने जानों का नजराना पेश करके लेबर को, मजदूर को अपने उनके हुकूक दिलाए, अपनी जानिब से, अपने तंजीम की जानिब से, अपनी क़ियादत की जानिब से उनको, उन शुहदा को सुर्ख सलाम पेश करता हूँ। और आज का हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीपल्स लेबर ब्यूरो के ज़ेर तमाम ये प्रोग्राम इस बात की जमानत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साबका दौर में भी मजदूरों और लेबर की जामिन रही है, आप भी लेबर और मजदूरों की जामिन है, और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में भी लेबर और मजदूरों की जामिन जमात रहेगी। सगीर लाला के दिलों से सगीर लाला को जाते हुए एक फारसी का शेर कहता हुआ चलो, हम जिन्स कुनत परवास, हम जिन्स कुनत परवास, कबूतर बा कबूतर, बाज बा बाज। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और तमाम दोस्तों का एकदम फिर लेबर ब्यूरो का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें इस स्टेज पे आने का मौका दिया। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। नाराए भुट्टो, जिए भुट्टो, जिए भुट्टो। जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़े इक़्तिदार में आई है, उसने मजदूर और पिछड़े हुए तबकात की खिदमत की है। मजदूर वो तबका है जो सुबह सवेरे निकल के अपनी मेहनत मजदूरी, मेहनत मुशक्कत करके रात को अपने बच्चों के 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत मुशक्कत करता है। आज के आप महंगाई के दौर में देखे कि 2 वक्त की रोटी भी उनकी बस से निकल चुका है। तो मैं अपना तकरीर मुख्तसर करूंगा क्योंकि सारे दोस्त भी चले गए। सगीर करम साहब ने जो बात कही, मैं उसके बातों से बहुत मुतफिक हूँ। सगीर करम साहब ये तो वतीरा रहा है कि मौसमी परिंदे हाँ कर गा पी कर चले जाते। हम और आप वो पुराने जियाले हैं। हम जब बच्चे थे हमको वो याद है दिन जब मोहतरमा शहीद को 2007 में कराची में नजरबंद किया गया। हम वही जियाले हैं, शराब फोटो के लिए निकल के बंद करके गाड़ियां जलाए, हम पे FIR हुए। हम वही जियाले हैं और पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई, वही लोग खा पी कर चले गए। लेकिन हम इंशाअल्लाह मरते दम तक पीपल्स पार्टी के साथ हैं और साथ रहेंगे। नारे भुट्टो, जय भुट्टो। शुक्रिया सुंदर साहब। अब मैं पीपल्स पार्टी कोटा डिस्ट्रिक्ट के सदर मीर नसीबुल्लाह शाहवानी साहब से गुजारिश करूँगा कि मुख्तसर अपने ख्यालात का इज़हार करें। मीर नसीबुल्लाह शाहवानी साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुहम्मदुन सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले आज के दिन के हवाले से मैं लेबर ब्यूरो के सूबाई सदर जनाब गुजर साहब को, उनके पूरे टीम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो हमेशा मजदूर को याद रखते हुए ये डे मनाते हैं। इसके साथ हमारे बाकी दोस्त सूबाई और हमारे ज़िले और बाकी दोस्त बैठे हुए हैं, और हमारे ट्रिडाल में बैठे हुए हमारे दोस्त काफ़ी देर से हमें सुन रहे हैं, उनका भी ख़वातीन सब का मशहूर है। अगर मैं आज के दिन पर तारीख पर या आज के दिन के हवाले से मजदूर की तारीख पर मैं अगर बातें करूं या तकरीर करूं, शायद मेरे अल्फाज ख़त्म हो और उनकी जो कुर्बानियाँ हो वो शायद बाकी रह जाए। और अगर मैं कलम उठा के भी शायद इनको मैं तारीख को लिखता जाऊँ कि ये कम पड़ जाए।
तो बाकी टाइम भी कम है, दोस्तों ने मुख्तसर करा है, सिर्फ मुख्तसर हवाले से मैं कुछ बातें करूंगा कि जैसे कि आपको हिस्ट्री मालूम है यकूम मई के हवाले से कि यकूम मई के हवाले से जिस तरह 25 सितंबर 1886 में वहां से रशिया से इसी मजदूर के हकूक के हवाले से जदोजहद शुरू होती है। मुख्तसर मैं कहूँगा, दरमियान में तारीख तो बड़ा है, जब शिकागो पहुँचती है तो एक मुनज़्ज़म फेडरेशन या मुनज़्ज़म एक ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल इख्तियार करती जाती है। तो उसके लिए यही मजदूर तबका अपने जो है आईनी हाथों से, जिस तरह दोस्तों ने दोहराया, मैं दोबारा कैसे दोहराऊँ, जो हमारे लिए मकान की तमीर करते हैं और मुख्तलिफ जो पूरा जो हमारा माशरा है इसका तमीर भी इसी मजदूर के जो हाथ से होता है। तो हम जितना भी इस मजदूर के तारीफ करें वो शायद कम पड़ जाए। तो उस हवाले से शिकागो के जो शहीद हैं आज के दिन, आज के मजदूर के जो हवाले से 1886 में जो जुल्म और बर्बरियत जिस माशरे में, बल्कि आज उसको में तरक्की याफ्ता माशरा कहते हैं, उस दौर में इस मजदूर के साथ जिस तरह का जो अपने हकूक मांग रहे थे, जिस तरह का उनके साथ जुल्म और बर्बरियत, जिस तरह का जुल्म किया गया, उनका खून बहाया गया, लेकिन आज तक, आज कितने अरसे गुजर गए, आज भी उन शहीदों का, उन मजदूरों का, आज के इस इजलास और इस तरह के कॉन्फ्रेंस के हवाले से उनका जो लहू है उसका खुशबूदी में आता है। तो इसके हवाले से मैं यही कहूँगा कि मजदूर जो है हमारा वो तबका है जो माशरे को बनाने वाला तबका ही मजदूर होता है। उसके हवाले से मैं अपने पार्टी के हवाले से अगर कुछ कहूँ, उस हवाले से भी मैं ये कहूँगा कि हमारा जो लेबर फेरो है वो इस बात की बड़ी एक सबूत है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान पीपल पार्टी के बारी जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मजदूरों के हवाले से बाकी स्टेट और जमहूरियत में और उस रियासत के लिए जिस तरह की कुर्बानियाँ जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और पाकिस्तान पीपल पार्टी का उसका एक लंबा हिस्ट्री है जो सुनहरी तारीख में लिखा जाएगा। और इसके साथ जो मजदूरों के लिए उन्होंने 1970 में एलपीटी बनाया, ये सबसे बड़ा बहुत बड़ा एक प्रूफ है कि इन्होंने मजदूरों के लिए क्या जदोजहद जो इन्होंने शुरू की। स्टील मिल इस तरह के बाकी जो बहुत से इदारे हैं, इंस्टीट्यूट है, उन्होंने जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जिनकी बुनियाद रखी जो भी पाकिस्तान पीपल पार्टी के लिए और हमारे लिए, हमारे वर्करों के लिए एक बहुत बड़ी एक फख्र की बात है। और उसमें हम आज भी कायम हैं और अपने भाइयों मजदूरों के साथ खड़े हैं। इस तरह कुछ गिला शिकवा भी किया, अभी भाई मेरे साथ खड़े हैं, टाइम कम है, कि बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि जो पाकिस्तान पीपल पार्टी की ज़्यादा है जो बुनियादी वर्कर है वो ये बैठे हुए। अगर इस तरह हम हर मैदान में, हर जगह पे ये समझते हुए कि पाकिस्तान पीपल पार्टी का असल जो बुनियाद है वो हमारा आप है और वर्कर है, और ये जो कोऑर्डिनेशन और ये जो अपना जो ताउन एक दूसरे के साथ रखे, तो इंशाल्लाह हम आगे जाके बहुत सी अचीवमेंट कर। कुछ दोस्तों ने गिला किया, शायद मुझे भी इसमें गिला दिया, मैं खुद टिकट होल्डर भी और अभी भी शायद टिकट के लिए मैंने अप्लाई किया और कंटेस्ट कर रहा हूँ। उम्मीद है, इसी उम्मीद में मैंने कंटेस्ट किया है, अगर टिकट मुझे मिलेगा बाबूजान इंशाल्लाह मेरे दरवाजे आपके दिन और रात खुले रहेंगे। शुक्रिया मीर साहब। बाबूजान का ये कहना था कि मिनिस्टर बनने के बाद टिकट लेते वक्त दरवाजे से दिन रात खुले होते सबके लिए। नहीं, इंशाल्लाह मीर नसीबुल्लाह शाबानी तो हम जानते हैं इनका बलूचिस्तान की सियासत में एक बड़ा जदोजहद शामिल है, कारकुन है, और इंशाल्लाह खुदा करे कि हमारे इस तरह के साथी कामयाब हो जाए तो हमारा पार्टी का नाम भी रोशन होगा और हमारे कारकुनों के मसाइल भी हल होंगे। अब मैं पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सूबाई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मीर सनाउल्लाह जतक से गुजारिश करूँगा कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस पुरवकार तकरीब के मुंतज़मीन, स्पेशली मैं लेबर विंग के जो हमारे हरदिल अजीज
सारे अपने अजीज हैं, स्पेशली मामा शाहजान गुज्जर जो हमेशा लेबर का एक कलीदी किरदार रहा है। जैसा कि आप सबको मालूम है, हम केपीके, पंजाब, सिंध, लेकिन हमेशा हमारा लेबर ने अपने जितना भी उनसे हुआ है, उन्होंने पार्टी का प्लेटफॉर्म पर लेबर का नुमाइंदगी भरपूर अंदाज में की है और मैं उन्हें सलाम पेश करता हूं। इसी तरह स्टेज पर तशरीफ फरमा लेबर के प्रेसिडेंट मामा शाहजान गुज्जर, पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के सदर जहांगीर बलोच साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मीर नसीबुल्लाह शाहवानी साहब, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीरजादा साहब, सूबा एग्जीक्यूटिव मेंबर मीर सुबदार जत्तक साहब, आज का दिन यानी एक बहुत ही अहम दिन है। गोरा को जिंदगी में हर किसी का इस तबके के साथ ताल्लुक रहा है, खा वो आज अरबपति है, खा वो आज करोड़पति है, खा वो आज खरबपति है। मैं खुद फख्र से कहता हूं, मैं एक मजदूर का बेटा हूं, मैं मजदूर हूं, क्योंकि हमें फख्र है इस चीज पर। आज आप देख लें इस खित्ते में, इस दुनिया में जिस तरह तब्दीलियां आ रही है, हम यहाँ पर ट्रेड यूनियन, मुख्तलिफ यूनियंस की बात करते हैं। एज अ होल हम मुकम्मल अपनी सोसाइटी को देखें, लोगों की मुश्किलात को देखें, मैं ये समझता हूँ बहुत ज्यादा पसमानदगी, भूख, अफलास है। खुशकिस्मती से ये मुल्क एक ज़रई मुल्क है, लेकिन बदकिस्मती से हम इसमें भूखे, नंगे, प्यासे हैं। आखिर क्यों? जब हमारा इस्तेसाल होता है, हम फिर उन्हीं तबकों से अपने आप को, अपने हकूक को गस्ब कराते हैं। यानी आप देख लो, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद इस मुल्क का चेहरा जिस तरह मसख किया गया है, आज आप हर गरीब के माथे पर आपको नजर आता है कि इस मुल्क में गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, दहकानों के लिए कोई जगह नहीं। क्या पाया आप लोगों ने? शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को रास्ते से हटाया। आपने इस मुल्क में कलाशनकोव कल्चर आम किया। इस मुल्क को जिस बुलंदियों पर ये मुल्क जा रहा था, इस मुल्क को आपने अपना किरदार अदा किया। आज आप रो रहे हो, भीख मांग रहे हो, कभी IMF की दर पर, कभी हम अरब इमारात के दर पर, कभी हम सऊदी अरब, चाइना की दर पर। ये लम्हा फिक्रिया इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के 23 करोड़ 24 करोड़ आवाम के लिए, यानी हम इस मुल्क को इस हद तक मखलूस कर दिया है, यहां से निकलना बहुत मुश्किल है। हम कहते हैं ये वतन हमारी माँ है, गरीब भी कहता है, अमीर भी कहता है। क्या माँ के साथ इस तरह किया जाता है जो हमने किया ये 75 सालों से? क्या माँ के बेटे इसी तरह करते अपने माँ के साथ? बहुत अफसोस होता है हमें। ये मुल्क हमारा मुल्क है, यहीं पर हमारे आबा व अजदाद दफन है, यहीं पर हमें भी दफन होना है, यहीं पर हमारे बच्चे फलेंगे फूलेंगे। जब इसमें अमन नहीं होगा, ये जितना बस्ती की तरफ जाएगा, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम मुश्किलात के दलदल में मजीद फंसते जाएंगे। आज का दिन मैं एक छोटा सा पैगाम देना चाहता हूं कि हम और आप में जब तक जिद्दोजहद नहीं करेंगे, तो मैं ये समझता हूं सबका हिस्से का एक अपना फर्ज बनता है जिसे हमने निभाना है। आप देख लें
मैंने कहा जिस तरह शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ज़िया-उल-हक के माशाल्लाह उसकी करतूत पूरी दुनिया के सामने है, इसी तरह आप देख लें बाकी हुकूमतें आए उनके करतूत भी सबके सामने है। जनरल मुशर्रफ के भी करतूत आप पाकिस्तानी अवाम के सामने है। जिस तरह इमरान खान न्यासी को एज अ प्रोडक्ट उसको बनाया गया, उसके ऊपर इतना मेहनत किया गया, उसे एक फरिश्ता सिर्फ इंसान बनाया गया। हालांकि मैं ईमान आप लोगों को कहता हूं कि वो शैतान है। शैतान जब अपना रूप बदलता है वो आपको फरिश्ता लगता है। आपने देखा इस शैतान ने, इस मुनाफिक ने पाकिस्तान को 36,000 अरब मकरूज कर दिया है। आज इस मुल्क को जिस दलदल में इस बदबख्त ने डाला है, ये फितने का दौर है, ये आखिरी दौर है। कहते कि सच आपको दिखाई नहीं देगा, झूठ बिकेगा। आज इमरान खान जिस तरीके से अपने बयानियात को बदल करके वो इस कौम को बेवकूफ कर रहा है, मैं ये समझता हूं अगर पाकिस्तानी कौम एक दफा फिर इस तरह इस ठग के सामने बेवकूफ होगा तो मैं ये समझता हूं जो बचे कुछ गरीब है वो भी नहीं बचेंगे। आखिर में मैं एक दफा फिर अपने तमाम दोस्तों का, अपने भाइयों का, अपने बहनों का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये वतन हमारा है, इस वतन के लिए हमने जिद्दोजहद करना है, खा वो हम जितने भी कमजोर हो, लेकिन हमने ईमान के हद तक इस वतन के लिए खिदमत करना है। जिए भुट्टो, जिए अवाम, जिए पाकिस्तान। बहुत मेहरबानी। मैं आज मुझे याद आया इमरान खुर्रम के वालिद साहब, वही जज्बा, वही सिलसिला जिस जगह उन्होंने छोड़ा आपने संभाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टेज पर तशरीफ फरमा डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सनाउल्लाह जदक साहब, मीर नसीबुल्लाह शवानी साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जफरुल्लाह पीरजादा साहब, खान काकर साहब, PSF बलोचिस्तान के सदर जहांगीर बलोच साहब, मीर सुरदार जदक साहब। दोस्तों का नाम अगर न ले सकूं तो मुझे, मैं समझता हूँ आप मुझे गुजर करेंगे, माफ फरमाएंगे। ख़वातीन विंग की मोहतरमा माजबीन जमाली साहबा, मोहतरमा सकीना अब्दुल्ला साहबा और अख्तर शाह करल साहब, सॉरी अख्तर शाह मधुखेल साहब, अयूब आगा साहब और पिंडाल में तशरीफ फरमा मेरे इंतहाई इनकलाबी सोच रखने वाले दोस्तों, पीपल्स लेबर ब्यूरो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और खुसूसन मैं काफ़ी देर से मैं इनसे माजरत खा हूँ, मेरे उस्ताद हैं, इन्होंने बलूचिस्तान के अंदर लेबर की सियासत को मेहनत कश के लिए तारीखी जदोजहद की है। खैर मोहम्मद शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए, आप हमारे साथ है। वक्त काफ़ी देर से मैंने आप दोस्तों को आपके सब्र को सलाम है। गुज़िश्ता 3 घंटों से आप हमें सुन रहे हैं, लेकिन ये डेमोक्रेटिक स्टेज है, डेमोक्रेटिक फोरम है, इसमें हमें यही मौका मिल रहा है। बाकी तो एक रिवायती सिलसिले होते हैं कि यहाँ प्रोटोकॉल का ख्याल रखना है और ये है, लेकिन हम जब देखते हैं
کہ ہمیں وہ کون سا فورم ہے جس میں ہم بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ کھل کر جو ہے ایک دوسرے کو سن سکیں، تو یہی فورم ہے، اور اس پہ ہی ہم نے اپنے دکھ اور درد کو جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا ہوتا ہے۔ تو آج ایک وہ عظیم دن ہے دنیا کی تاریخ میں، گلوبل ورلڈ پہ، جب 1886 کے اندر ظلم، جبر اور بربریت کے خلاف اس کرۂ ارض کے انسانوں نے ظالم مشینری کے خلاف اپنی آواز بلند کی، اور 1886 میں ان عظیم شہداء نے، جنہیں آج 137 سال گزرنے کے بعد بھی ان کے خدمات کو، ان کی قربانی کو، ان کی جدوجہد کو یاد کیا جاتا ہے، وہ آج بھی زندہ ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں، آج ہمارے سیمینار کا، میں دوستوں کا تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم آج بیٹھیں گے اس پہ جو ہے تھوڑا تفصیلاً جو وحشت اور بربریت اس خطے میں، اس دنیا میں، اور خصوصاً پھر پاکستان میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اپنے اس عظیم قائد جس کی سیاست اور جدوجہد آج بھی ہمارے ذہنوں پر نقش ہے، اور اس کی خدمات اس عظیم شخصیت کی، شہید ذوالفقار علی بھٹو، جنہوں نے اس وحشت اور بربریت جو 1886 سے شروع ہوئی پاکستان میں، اس کا تسلسل 1967 تک، جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان، وہ بڑی جاگیردار فیملی سے ان کا تعلق تھا، اگر وہ یہ سوچتے کہ جس طریقے سے اس ملک کا نظام اور سسٹم چل رہا ہے، لوگ سرمایہ دار اور 22 فیملیوں کو ان کی سیاست کو بھی قبول کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے، میں آج اس ملک کا وزیر خارجہ ہوں، ایوب خان کی حکومت میں، اور پوری دنیا مجھے ایک انتہائی قابل وزیر خارجہ کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنی یہ جو میری ایک شہرت ہے اس کو میں جو ہے داؤ پر لگاؤں، اور ایک ایسے طبقے کی بات کروں کہ جو طبقہ ایک بڑا طبقہ ضرور ہے، لیکن میری حکمرانی جو ہے، میں ایک حکمران طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، اگر ان لوگوں کو زبان ملی تو یہ لوگ کل کو میرے سامنے آ کر بیٹھیں گے، میرے اور میرے طبقے کی کیا پوزیشن ہوگی۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اس ظالمانہ نظام کو لات مارتے ہوئے پاکستان کی عوام کی قیادت کا فیصلہ کیا، اور 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بنیاد رکھی۔ انہیں اس وقت بھی تھریٹ تھا، ان کو بین الاقوامی دنیا اور یہاں کی ظالم جو حکمران طبقہ تھا ان کی طرف سے یہ تھا کہ بھائی یہ جو جس راستے کا انتخاب آپ نے کیا ہے یہ خطرات کا رستہ ہے، لیکن انہوں نے ان خطرات کو ٹھوکر مارتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، اور وہ بنیاد اس مظلوم طبقے کے لیے رکھی جس کی نمائندگی آج مجھ جیسے ایک غریب اور محنت کش طبقے کے انسان کو اس نمائندگی کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔
यौम मई असल में मैं समझता हूँ यौम मई का अगर बुनियादी पाकिस्तान में आपने एक तस्वीर देखनी है तो यौम मई का आगाज उस दिन से हो गया था जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने मेहनत कश तबके के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तीसरी नस्ल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की तीसरी नस्ल है। इस दरमियान शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जिस हालात में माशाअल्लाह जबर के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत संभाली, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की वरासत वारिस होने की हैसियत से और उनकी कमिटमेंट जो कमिटमेंट थी, जिस कमिटमेंट को वो लेकर चली, उनकी ईमानदारी और उनकी वफादारी का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि उन्होंने सियासत के मैदान में अपनी शहादत जो है वो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी शहादत पेश की। जिंदा है बीबी, जिंदा है, जिंदा है बीबी, जिंदा है, जिंदा है बीबी, जिंदा है। फिर बात के हालात है, इस पार्टी को किस किस्म की सूरत हाल का सामना क्यों है, मैं और आप तमाम आज यहाँ सियासी तालिब इल्म बैठे हैं, जो लोग सिर्फ सियासत को जो है मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। सगीर खरल साहब ने कहा ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है, लेकिन सियासत को समझना और अपनी खिदमत को निज़ाम के बदलने के लिए इस्तेमाल करना ये एक अलग चीज़ है। आपको अगर आपके 4 दोस्त सुन रहे हैं, मैं समझता हूँ ये हमारी फतह है, ये हमारी सियासत की सच्चाई की फतह है। हमने हथियार नहीं डालने, हमने अपनी जदोजहद को कंटिन्यू रखना है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सर जिन अजीम कायदीन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है, ये जो लोग यहाँ तशरीफ फरमा हैं, जो आज सुन रहे हैं, अपने तमाम मसरूफियात को छोड़कर, ये लोग उनका सर कभी नीचे नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। करने का मकसद ये है कि पॉलिटिकल कारकुन कभी मायूसी की तरफ नहीं जाता है। लोग कितने ही महदूद क्यों ना हो, लेकिन ये जो रास्ते सफर है इसको जारी रखना है और सच्चाई फतह हमेशा सच्चाई की होती है, कई मराया जाते हैं और सच्चाई को लेकर वो आगे की तरफ चलना होता है। मैं भुट्टो साहब, भुट्टो शहीद की तीसरी नस्ल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कल के एक इनकलाबी फैसले को अप्रिशिएट करूंगा। उन्होंने कल एक वाज़ह पॉलिसी बयान दिया है यौम मई के हवाले से, मजदूर की अहमियत को तस्लीम किया है और उन्होंने ये फरमाया है कि जब भी आने वाली हुकूमत इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी, उस हुकूमत में हमने असेंबली के अंदर मेहनत कश तबके को नुमाइंदगी देनी है। मैं सलाम पेश करता हूँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को। इससे बड़ा मैं और क्या समझता हूँ कि आज मजदूर की हैसियत को तस्लीम करने वाली पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और उसका चेयरमैन आज भी आपको ऑन कर रहा है। इन्हीं गुजारिशात के साथ मैंने आपका बड़ा टाइम दिया। दोस्तों के तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी। मजदूर ने इस खिते को रौनक बख्शी है, उसकी खूबसूरती के लिए काम किया है। आपने उनका हक अदा किया है। आप बैठे हैं, हमारी इस मीटिंग और महफिल को आपने जो है 4 चांद लगाए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। इंशाल्लाह इसके बाद फिर मुलाकातें होंगी। शुक्रिया।
شکریہ شاہجہاں صاحب. آپ تمام ساتھیوں کو